Hello my dear student, welcome back to my one more video, and in today's class we are going to study about the second part of our previous video. I hope everybody has studied from my previous video and you all liked it, as well as you all understood what I explained in my previous video. So in today's class we are going to study the same topic and one more topic I am going to include in that. Okay, now let's see which topic we are going to include. So first of all, I am starting here with atomic radius. So student, you know very well, and we have studied there in previous concept also, atomic radius. What trend we know? We know the trend of atomic radius, and that trend is when we are moving along a period. When we are moving along a period, atomic radius decreases, right? And when we are moving along a group, it means atomic radius increases. Yes, so this concept already we have studied. Yes. Now student, let's see that what all concepts are there and what all exceptions are there, because this concept already we have studied in class 10th. So what new thing we are going to study here? Okay, so why atomic radius decreases, that also we know that, and what is the reason for that? That reason is atomic radius decreases due to increase in effective nuclear charge, due to increase in its effective nuclear charge, or nuclear charge also simply we can say. And why this group atomic radius increases? Due to increase in number of shells, due to increase in number of shells. This concept also we have studied. Now let's study some exceptional cases regarding atomic radius. Okay, now in exceptional cases when we are going to study, first of all we'll take an example as helium, hydrogen and helium. So these both of them belongs to the first period. Both of them belongs to the first period. Am I correct, student? Okay, so we all know that. Okay, for understanding part I am using this little bit another language. So as we know that for this understanding one, or we know that hydrogen and helium belongs to the first period of the periodic table. ठीक है, सो अगर ये दोनों फर्स्ट पीरियड है अगर पीरियोडिक टेबल के, तो हम देखते हैं कि इसमें क्या ट्रेंड फॉलो करता है एटॉमिक रेडियस. सो एटॉमिक रेडियस ने ट्रेंड क्या फॉलो करना चाहिए कि भाई जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, अलोंग अ पीरियड जा रहे हैं, तो एटॉमिक रेडियस क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए. और ये बोलता है कि भाई हाइड्रोजन के एटॉमिक रेडियस बड़ी होनी चाहिए हीलियम के कंपैरिजन में. बट हम स्टडी क्या करते हैं? दिस इज नॉट करेक्ट. एक्चुअली हीलियम रेडियस इज मोर देन हाइड्रोजन रेडियस. अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों? अगर हमने ये ट्रेंड बताया तो हम ट्रेंड को क्यों फॉलो नहीं कर रहे? क्योंकि ये एक्सेप्शनल केसेस है. क्या है? आप यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं. ये कौन से केसेस है? एक्सेप्शनल केसेस है. हम बात कर रहे हैं एक्सेप्शनल केसेस की. एक्सेप्शनल केसेस. ओके, सो जब हम एक्सेप्शनल केसेस की बात कर रहे हैं तो हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है हमारे माइंड में अच्छे से हमें समझने पड़ेंगे. सो क्या है वो? देखो, सबसे पहले तो हमने ये कहा कि भाई ये क्या है, ये गलत है और ये करेक्ट है. ऐसा क्यों? हीलियम की एटॉमिक रेडियस क्यों बड़ी होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन? क्यों बड़ी होती है? अभी हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था. ऐसा क्यों? क्योंकि हीलियम क्या है? हीलियम एक नोबल गैस है. हीलियम क्या है? एक नोबल गैस है. और जब ये कोई नोबल गैस रहता है तो नोबल गैस की क्या, नोबल गैस में कौन सी रेडियस होती है? नोबल गैस में वेंडरवॉल्स रेडियस होती है. नोबल गैस में वेंडरवॉल्स रेडियस होती है. और ये वेंडरवॉल्स रेडियस होने की वजह से, और हाइड्रोजन में कौन सी रेडियस होती है? ये क्या है? ये है हाइड्रोजन. और हाइड्रोजन में कौन सी रेडियस होती है? हाइड्रोजन में जो रेडियस होती है वो है कोवैलेंट रेडियस. और ये हमने पहले भी कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि वंडरवॉल रेडियस हमेशा कोवैलेंट रेडियस से ज्यादा होती है. ऐसा क्यों होती है? क्योंकि वंडरवॉल्स रेडियस दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करते हैं, जबकि कोवैलेंट कब कैलकुलेट है? जब एक दूसरे के साथ शेयरिंग हो रही है तब कैलकुलेट करते हैं. और इसीलिए वंडरवॉल्स रेडियस क्या होगा? थोड़ा सा ज्यादा होगा एज कंपेयर्ड टू कोवैलेंट रेडियस. और इसीलिए हीलियम के एटॉमिक रेडियस इज मोर देन एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, एंड वी कैन राइट इट्स name also. Right? Similarly, we can write its reason also whenever question has been asked. Similarly, we can see the same trend in other periods also. Other periods means what? If I am talking about, okay, now I am talking about another exceptional case. So when I am talking about another exceptional case,
इन दिस व्हाट आई कैन ऑब्जर्व, आई ऑब्जर्व दैट ओके। तो चलो अभी हम बात करते हैं सेकेंड पीरियड की। सेकेंड पीरियड में आप सभी को पता है कौन कौन रहता है, कौन रहता है भाई, लिथियम, फिर आ गया बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन आता है नियॉन। ठीक है, तो ये सब आते हैं आपके सेकेंड पीरियड में। तो हमारा रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि लिथियम का साइज सबसे बड़ा होना चाहिए, फिर इस तरीके से जो है सबका साइज जो है बड़ा होना चाहिए। और बट फिर से हम बात करेंगे नियॉन, नियॉन का साइज इन सबसे बड़ा होता है, नियॉन का साइज जो है वो इन सबसे बड़ा होता है। ऐसा क्यों, फिर से रीजन हमारा यही आ गया। क्या रीजन है, रीजन ये है जो ये नोबल गैसेस, नियॉन क्या है, नोबल गैस, नोबल गैस इट मींस वंडरवॉल्स रेडियस, और वंडरवॉल रेडियस होने की वजह से वो क्या होता है, उसका साइज जो होता है वो बड़ा होता है। कल के भी वीडियो में हमने ये स्टडी कर चुके हैं कि कोवैलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और कौन सा आ गया आपका, वैंडरवॉल्स रेडियस। तो उसमें से वैंडरवॉल्स रेडियस सबसे ज्यादा होती है, इसलिए उसका साइज भी कैसे रहेगा, बड़ा रहेगा। ओके, सो ये हो गए कुछ एक्सेप्शनल केस। जब भी आप एटॉमिक रेडियस के बारे में स्टडी करते हैं तो आपको ये एक्सेप्शनल केसेस पता होना चाहिए, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पीरियड में नहीं। जब आप थर्ड पीरियड में जाते हैं, हम फोर्थ पीरियड में जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, हम सिमिलर ही हम ट्रेंड देखते हैं। अब डी ब्लॉक की बात जो है वो डी ब्लॉक की थोड़ी सी डिफरेंट बात आती है। ठीक है, सो डी ब्लॉक की जब हम क्लास 12th में जब एलिमेंट्स पढ़ेंगे तभी तो हम स्टडी करने वाले हैं। क्लास 11th में उन्होंने उतना डिटेल में डी ब्लॉक के बारे में स्टडी नहीं किया है, फिर भी मैं आपको एक आइडिया बता देती हूँ कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम क्या ट्रेंड देख सकते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो मैं यहां पर लिख लेती हूँ 1 मिनट। सो जब हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो डी ब्लॉक में क्या होता है, ध्यान से समझो इस चीज को। अगर मैं डी ब्लॉक के आती हूँ पीरियड में तो पहले क्या आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ओके, सो स्टूडेंट जब हम इनकी बात कर रहे हैं पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की और साथ में उसके नीचे भी जो सीरीज है उन सब की जब बात करते हैं तो देखो मैंने आपको पहले एक बहुत अच्छा सा वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी इनको सभी मेमोराइज करने के लिए। सो स्टूडेंट आई होप आप सभी ने वो शॉर्ट ट्रिक्स अच्छे से मेमोराइज कर लिए। तो आपको क्या होता है कि एलिमेंट्स को लिखने में, याद करने में बहुत ही ईजी हो जाता है। जैसे अगर मैंने कहा अभी स्कूटी वैन कार में फेंको निकोजन, सिंपल, और मुझे वो याद भी हो गया है। अब देखो जब आप इसके बारे में स्टडी करते हो डी ब्लॉक, ये कौन सा एलिमेंट है, ये है आपका डी ब्लॉक के बारे में जो आप डिटेल में क्लास 12th में और स्टडी करेंगे। तो इसमें हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं ये यहां से यहां तक जो है इनकी एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है इनकी, पहले डिक्रीज होती है। ठीक है, यहां पर एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, और ये लास्ट के जो 3 है इसमें एटॉमिक रेडियस जो होती है वो इंक्रीज होती है। तो अभी क्लास 11th में हम इतना ही याद रखेंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा ये इसीलिए होता है क्योंकि वहां पर क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इसका कितना आता है, D1, D2, D3, D4, अच्छा यहां पर भी D5 ही आता है, D5, D6, फिर आता है D7, D8, D10 और यहां पर भी D10 आता है। ठीक है, तो D8 मीन्स व्हाट, ये मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रही हूं। तो यहां पर क्या हो रहा है, डी शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। तो यहां पर क्या हो गया, आपके जैसे डी शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे तो यहां पे लेस रिपल्शन है, यहां पर क्या है, लेस रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। आ रहा है, समझ में आ रहा है, देखो ये है ना लेस रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर D5, D6, D7 तो क्या हो रहा है, रिपल्शन बढ़ रहा है, और रिपल्शन बढ़ने की वजह से जो है रिपल्शन इंक्रीजेस, रिपल्शन क्या हो रहा है इसका, इंक्रीज हो, रिपल्शन बढ़ रहा है, और रिपल्शन जब बढ़ रहा है तो उसका साइज वो क्या करते हैं, थोड़ा सा कांस्टेंट रख लेते हैं, और लास्ट में क्या होता है, रिपल्शन और भी ज्यादा, इन रिपल्शन इंक्रीजेस मोर, रिपल्शन इंक्रीजेस मोर। तो ये जो है बेटा यहां पर आपको ध्यान से सुनना है कि भाई एटॉमिक रेडियस जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे अलोंग
पीरियड जाएंगे, स्पेसिफिकली मैं किसकी बात कर रही हूँ, डी ब्लॉक की, तो हमें ये ट्रेंड देखने को मिलेगा। और ये ट्रेंड जो है हम अभी शॉर्ट में हम इतना ही याद रखेंगे, और अभी हम डी ब्लॉक जब भी पढ़ेंगे तब इसको और भी ज्यादा डिटेल में थोड़ा सा हाई लेवल का स्टडी करेंगे। ओके, सो आई होप आप सभी को जो है एटॉमिक रेडियस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। तो हमें मेन की कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि भाई अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और एटॉमिक रेडियस मेटालिक है, वैन डर वाल रेडियस है, या फिर वैन डर वाल रेडियस है, या फिर हम कौन सी कहा हमने, कोवैलेंट रेडियस है। ठीक है, अगर आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया है तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। आयोनिक रेडियस मींस क्या होता है, चलो अभी हम समझते हैं। कंसिडर करो कि ये कोई एक मेटल है, इस मेटल ने क्या किया है, अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। अगर मेटल ने किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो ये किस पे कन्वर्ट होगा, M पॉजिटिव में, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कैटायन। हम क्या कहते हैं इसको, कैटायन कहते हैं। अब हमने एक और इलेक्ट्रॉन, हम मेटल ने, अगर किसी मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, निगेटिव में, तो हम उसको क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि आयोनिक रेडियस जो होती है वो फॉर्म होती है कि कैटायंस, आयोनिक रेडियस किसकी हम बात करेंगे, कैटायंस और एनायंस की। अब जब हम कैटायंस और एनायंस की रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं तो चलो एक बहुत ही की कॉन्सेप्ट है, या फिर मैं कहूंगी शॉर्ट ट्रिक है जो हम यहाँ पर याद रखेंगे। हमें कैसे याद रखना है, हम ये देखेंगे कि किसका साइज बड़ा होता है और किसका साइज छोटा होता है। ठीक है, सो हम ये कहेंगे कि एनायन जो होते हैं, क्या होते हैं, एनायन जो होते हैं इसका साइज हमेशा बड़ा रहता है। उसके बाद में पर्टिकुलर पेरेंट एटम आता है और फिर आता है आपका कैटायन। सो इसके लिए आप ये ऐसे भी आका भी कह सकते हो, इसको क्या कहेंगे हम, आका। आका मीन्स क्या, एनायन, एटम एंड कैटायन, एनायन, एटम एंड कैटायन। तो एनायन का साइज हमेशा ज्यादा बड़ा होगा, एटम का साइज उससे कंपैरेटिवली कम मतलब उससे छोटा होगा, और जो अगर उसी का अगर कैटायन है तो उसका साइज क्या होगा, कंपैरेटिवली छोटा होगा। तो इसके लिए अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स कैसे, अगर मैं पहले एग्जाम्पल लेती हूँ सोडियम का, और हमारे पास में है Na पॉजिटिव। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सोडियम और Na पॉजिटिव में किसका साइज बड़ा होगा और किसका साइज छोटा होगा, ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे, हम फट से ये याद कर लेंगे, भाई जो एटम है, खुद पेरेंट एटम जो है, पेरेंट एटम है, उसका साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो हमने बता दिया फट से कि भाई सोडियम का साइज बड़ा होगा Na पॉजिटिव से, सोडियम का साइज बड़ा होगा Na पॉजिटिव से। अब इसके पीछे मैं रीजन भी आपको बताती हूँ। रीजन क्या है, देखो, जैसे देखो, अगर मैं ए सोडियम की बात करूँ तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। इट मीन्स यहाँ पर एक क्या हो गया, अपना न्यूक्लियस हो गया है, ये न्यूक्लियस है, और फिर न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ये सभी, ये फर्स्ट शेल हुआ, ये सेकेंड शेल हुआ, और ये क्या हुआ, थर्ड शेल हुआ। अब सेकेंड थर्ड शेल में आप देखते हो 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में, फिर इसमें कितने बच गए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आए। ये किसका है, ये सोडियम का है। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, Na पॉजिटिव का भी बना। Na पॉजिटिव मीन्स क्या, जिसमें से 1 इलेक्ट्रॉन जा चुका है। जब एक कोई इलेक्ट्रॉन चला जाता है तब देखो ध्यान से कि वो कैसे बनाता है इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया 8, और ये एक और शेल है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, चलो इसके साइज मैंने जो ड्रॉ किया उस पे मत जाइए, अब ध्यान से समझो। सोडियम का एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 281, ठीक है, और सोडियम के पास में प्रोटॉन कितने हैं, तो हम ये कहेंगे प्रोटॉन कितने हैं इसके पास, प्रोटॉन जो 11 है, और इलेक्ट्रॉन भी 11 है। ठीक है, अब इसकी बात करो, यहाँ पर 2 और 80 है, मतलब सोडियम के पास में जो प्रोटॉन जो है वो अभी भी 11 है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने बचे, सिर्फ 10 बचे। तो अब जब इलेक्ट्रॉन 10 ही बचे हैं तो वो क्या करेगा, यहाँ ये जो 11 प्रोटॉन है, ये 11 प्रोटॉन उसको अपनी तरफ अच्छे से खींच के रखेगा, और जब वो अपनी तरफ अच्छे से अट्रैक्ट करके रखता है तो उसका साइज जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, छोटा होता है, एज कंपेयर्ड टू दी पेरेंट एटम। सिमिलरली हम इसी का हम क्लोरीन की भी बात कर सकते हैं, क्लोरीन एंड क्लोरीन निगेटिव। सो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 287, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 288। यहाँ पर कितने प्रोटॉन्स है, 17, यहाँ पर भी प्रोटॉन 17 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 17 है, और जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब ये 18 इलेक्ट्रॉन्स है, समझो ध्यान से, तो इसका जो है यहाँ पर p इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, प्रोटॉन क्या होगा,
कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वो उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। चलो इसके लिए मैं क्लासरूम एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप मान के चलो कि आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और टीचर अकेली है। अगर टीचर अकेली है तो उन सबको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और कंट्रोल करना मुश्किल होगा तो आवाज ज्यादा होगी क्लास में, और जब क्लास में साउंड ज्यादा होगा तो हम क्या कहेंगे कि भाई टीचर तो कंट्रोल नहीं कर पा रही है, राइट। बट अगर उसी की जगह पे अगर कम स्टूडेंट्स हो और टीचर उतनी ही पावरफुल हो तो क्या करेगा, वो सबके ऊपर नजर रखेंगे, और अगर नजर रखे तो आवाज क्या होगा उसका, कम हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि नहीं, उनका अट्रैक्शन जो है वो हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ में, हर एक स्टूडेंट्स के साथ में प्रॉपरली है। तो हम यही कहते हैं कि ज्यादा प्रोटॉन होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखते हैं, और अगर बट इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो तो वो उतना टेंशन नहीं दे पाती, उतना खींच के नहीं रख पाती, और इसीलिए एनायन का साइज जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा एज कंपेयर्ड टू कैटायन। ठीक है, आप आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। ओके स्टूडेंट, चलो अभी हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में हमने क्या लिया, सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट याद रखना है हमें कि क्या बोला था मैंने, आका बोला था। आका इट मीन्स व्हाट, एनायन, फिर उसके बाद में आएगा आपका एटम, और फिर उसके बाद में आएगा आपका कैटायन। तो देखो इसके हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास में ये है, अगर H माइनस H और H प्लस है, तो अगर इसको हमें अरेंज करना है कि भाई उसके एटॉमिक आयोनिक रेडियस के अकॉर्डिंगली अरेंज करो, तो हम जल्दी से ये फॉर्मूला याद रखेंगे भाई एनायन क्या होता है, सबसे बड़ा हो जाएगा, एटम उससे छोटा होगा, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, H प्लस आ जाएगा। अब हम यहाँ पर कुछ दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे अगर मैंने N के एग्जाम्पल्स ली, N का N निगेटिव, फिर यहाँ पर 2 निगेटिव हो गया, और यहाँ पर 3 निगेटिव हो गया। अब ध्यान से समझो, अभी हमने क्या बताया था कि भाई ज्यादा बड़ा रिपल्शन ज्यादा, कि कब हो सकता है रिपल्शन ज्यादा, कि रिपल्शन ज्यादा तभी हो सकता है अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा हो। चलो इसके लिए एक एग्जांपल्स लेते हैं, फिर से अपन अपनी स्कूल की याद करते हैं। अगर मान के चलो कि क्लासरूम में कोई टीचर है नहीं, और सब बच्चे जो 5-6 स्टूडेंट्स जो थे, 5-6 स्टूडेंट्स वो बहुत मस्ती कर रहे थे, बहुत मस्ती करते, तब तक अचानक टीचर आ गए, और जब टीचर आ गए तो उन्होंने देखा कि 5-6 स्टूडेंट्स मस्ती कर रहे हैं, तो उनकी पिटाई हो गई, अच्छे से पिटाई होगी। तो जब अब पिटाई हुई तो देखो इसमें पिटाई में क्या हुआ कि 5-6 स्टूडेंट्स है, तो एक एक को मारते समय क्या हुआ कि उसका जो, क्या हम कहेंगे कि टीचर का जो ध्यान सबके ऊपर था, तो क्या हुआ, अट्रैक्शन कम हुआ। और अगर अट्रैक्शन कम हुआ तो आपके थोड़े से बचने के चांसेस ज्यादा हुए। वैसे ही, और अगर उसी जगह 4-5 की जगह अगर सिर्फ 2 स्टूडेंट होते या 3 होते, तो उन तीनों पे पहले इसको मारो, ऐसा सब आराम से हो सकता था। अब इसी को हम समझते हैं इसके कंपैरिजन में कैसे। अब जब एक इलेक्ट्रॉन रहता है, क्राउड रहेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, तो जो अगर एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसमें रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन कम होगा तो साइज छोटा होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा तो साइज भी उतना ही बड़ा हो जाएगा। और इसी के कंपैरिजन में ये सभी एनायन है, ये सभी क्या है, एनायन है। तो एनायन में क्या होता है, जिसके ऊपर ज्यादा चार्ज उसका साइज बड़ा, फिर छोटा, और फिर उससे भी छोटा आ जाएगा। चलो अभी हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर Mn2 पॉजिटिव, Mn4 पॉजिटिव, और ये आ जाएगा Mn6 पॉजिटिव। अगर इस तरीके से लिखा होगा और आपसे पूछा जाए किसी ने कि भाई इन सब में किसका साइज बड़ा है और किसका साइज छोटा है, तो हम कैसे पता करेंगे। सेम फॉर्मूला इसके लिए भी हम अप्लाई करेंगे कि भाई जब कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते, जैसे अगर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतना उसका छोटा साइज हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। और इसीलिए इसका क्या होगा, सबसे छोटा साइज किसका होगा, इसका सबसे छोटा साइज होगा। अच्छा, इसका सबसे छोटा होगा, फिर इसका होगा। क्यों, इसका सबसे, इन तीनों के कंपैरिजन में इसका साइज हमने क्यों कहा बड़ा, क्योंकि उसके पास में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है एज कंपेयर्ड टू अदर्स। सो स्टूडेंट, इसके जब क्वेश्चंस आते हैं तो ये इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, और हमें इसको प्रॉपरली स्टडी करना रहता है। अब हम आते हैं कि भाई आयोनिक रेडियस का ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड जो है पीरियोडिक टेबल में ये क्या होता है, ठीक है। तो ट्रेंड जब हम स्टडी करते हैं तो ये रेगुलर ट्रेंड फॉलो करते हैं। कौन सा ट्रेंड फॉलो करते हैं, रेगुलर ट्रेंड। रेगुलर ट्रेंड इट मीन्स जब हम अलोंग पीरियड जाएंगे या अलोंग ग्रुप जाएंगे, तो अलोंग जब पीरियड जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। अलोंग ग्रुप जाएंगे तब क्या होगी, तब एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होंगी। तो ये सभी लोग भी क्या करते हैं, प्रॉपरली रेगुलर ट्रेंड जो है वो फॉलो करते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि अगर हमारे पास में कोई ऐसे है, Na पॉजिटिव है, Mg2 पॉजिटिव है और Al
3 पॉजिटिव। अगर इस तरीके से है और हमें अगर किसी ने बोला जाए कि भाई आप बताइए जरा इन सब का कैसे हम अरेंज करें, तो इसके लिए हमें सबसे पहले कौन सा कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा? हमें जो कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा वो होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अब मैं यहां पर आपको समझाती हूं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। हम इसको ध्यान से समझते हैं क्योंकि क्वेश्चंस हमेशा इस बेसिस पे सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है, अब हम यहां पर आते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मीन्स क्या होता है, पहले तो ये समझो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो सभी स्पीशीज होती है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। वो होते हैं जिनमें क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हमारे पास अभी एग्जांपल ले लेते हैं हम, Al3 पॉजिटिव है हमारे पास में, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा हमने एग्जांपल लिया Na पॉजिटिव, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। एक और ले लेते हैं Mg2 पॉजिटिव, इसमें भी कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं दूसरा लेती हूँ तो ये कितना हुआ, O2 निगेटिव, तो इसमें भी कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। N3 निगेटिव, तो इसमें भी कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इन सभी को हम क्या कह सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कह सकते हैं। जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज रहते हैं तो हमें ये पता करना है कि भाई इनके सबका साइज जो है वो हम कैसे बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, चलो देखते हैं अभी हम इनका साइज हम कैसे बता सकते हैं। देखो ध्यान से, हमें एक फॉर्मूला याद रखना है और वो एक शॉर्ट ट्रिक है जो आपको याद रखना है। क्या है वो शॉर्ट ट्रिक, हम ये कहेंगे कि साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। तो चलो सबके एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना है इसका, एल्यूमिनियम का 13, इसका 11, ये कितना है 12, ये कितना है 8 और ये कितना है 7। तो अब हमने क्या कहा कि जिसका एटॉमिक नंबर छोटा होगा उसका साइज उतना ही बड़ा होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली N3 पॉजिटिव का साइज सबसे बड़ा होना चाहिए इसके बेसिस पे। उसके बाद में कौन आएगा, O2 निगेटिव आएगा क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 8 है। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद में आएगा Na पॉजिटिव और उसके बाद में आएगा Mg2 पॉजिटिव और फिर आता है Al3 पॉजिटिव। सो स्टूडेंट, और ये हमने सेम ट्रेंड फॉलो किया है जो हमारे इसमें लिखा हुआ है। सो इस तरीके से स्टूडेंट हम सभी जो है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस जो है वो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हम इसके बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें 2-3 जो शॉर्ट ट्रिक इस वीडियो में हमने डिस्कस की है वो आप सभी को अच्छे से समझना है और इनकी प्रैक्टिस भी करना है। सो आई होप you all understood today what I taught in today's class. Okay students, so I hope you all liked today's video also and understood also. Thank you students and have a good day ahead.